بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کو جس نے کئی دن اور چلنا تھا، اچانک اسپیکر نے ختم کر دیا، اور جس طرح چور بھاگتے ہیں اس طرح قومی اسمبلی کا اسپیکر ڈائز سے بھاگا۔ کل کی جو شکست اس حکومت کو ہوئی ہے، حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ کل جو وزراء 40 جو وزراء ہیں وہ عمران بابا کو گھر چھوڑ کر ایک سٹیج پر اکٹھے ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ نہ ان کو قانون کا پتہ ہے، نہ ان کو آئین کا پتہ ہے۔ وہاں یہ کہہ کر چلے گئے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اس کے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو اسپیکر جو ہے وہ ڈائز چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی حکومت کی حالت ہے۔ کل کیا ہوا پورے پاکستان نے دیکھ لیا ہے۔ اس حکومت کا وزیر خزانہ امیدوار تھا، اس کی کیمپین، الیکشن کیمپین وزیر اعظم نے خود چلائی، ہر ایم این اے کو ملا، اربوں کی اسکیموں کے وعدے کیے، ہر قسم کی دھونس اور دھاندلی کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی حکومت کو شکست فاش ہوئی۔ اور یہ بات عیاں ہے، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نیازی اس ہاؤس کا اعتماد کھو چکا ہے۔ اس کی وہ لوگ جو حکومتی بینچوں پر بیٹھتے ہیں، 17 افراد نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ حکومت کے پاس آج اکثریت نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب اس کا صرف ایک حل ہے، اور وہ نئے الیکشن میں ہے۔ اگر پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہے، اس معاشی بحران سے نکالنا ہے، تو واحد حل ہے کہ ایک نیا الیکشن ہو، پاکستان کے عوام کو اپنی رائے کے استعمال کا پھر موقع ملے، اور وہ فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کس کی حکومت ہوگی۔ یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے عمران خان کو۔ میدان بھی حاضر ہے۔ اب یہاں پر جعلی اعتماد کا ووٹ لینے کا، اسمبلیوں کو اس طرح دھونس دھاندلی سے چلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 2.5 سال میں اس حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے پورے پاکستان نے دیکھی ہے۔ اس حکومت کی ناکامی سے پورا پاکستان پریشان ہے۔ آج اس ملک میں واحد راستہ ہے کہ نئے الیکشن ہو اور پاکستان کے عوام پھر ایک نئی حکومت منتخب کریں جو ملک کے مسائل حل کر سکے۔ 2018 کا چوری شدہ الیکشن پاکستان کو صرف مشکل دے سکا، پاکستان کے عوام کو صرف مہنگائی دے سکا۔ آج اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج صرف ایک راستہ ہے، اور وہ نئے الیکشن میں ہے۔ جتنی جلدی یہ کریں گے یہ سیاسی بحران ختم ہوگا، ورنہ نہ ملک چلے گا، نہ یہ پارلیمان چلے گی، نہ معیشت چلے گی، اور عوام کو مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، اور حکومتی بینچوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، جس کا اظہار انہوں نے کل کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حکومت کو قومی اسمبلی میں جو شکست فاش ہوئی ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس خفت کو مٹانے کے لیے، اس بے عزتی کو مٹانے کے لیے کئی قسم کے منصوبہ سازی کی جا رہی ہے، کئی طریقے گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ ضمنی انتخابات ہوں یا سینٹ کے انتخابات ہوں، اور خاص طور پہ قومی اسمبلی میں جس کے لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اس میں اس طرح شکست کھا جانے کے بعد
मैं समझता हूँ ये जो भी तावीलें पेश करेंगे, जो कुछ भी हीले बहाने करेंगे, जो कुछ भी तौर तरीके करने की कोशिश करेंगे, वो सब फजूल है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। और देखें, जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असेंबली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया है। और इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि हुकूमत जो है वो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पीडीएम ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई जो है वो बाइज्जत तरीका नहीं है, कोई ऑनरेबल तरीका नहीं है। ये कह देना कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता, तो देखिए अगर आप चूहों की तरह नहीं करना चाहते तो फिर शेरों का तो एक ही तरीका है कि आप आए कौम के सामने, इस्तीफा दें और मैदान में जाकर पाकिस्तान के अवाम के मैदान में जाएं और वहां अपने आप को पेश करें। वो एक तरीका है जो चूहों का नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी तावील पेश की, कोई भी तौर तरीका अपनाने की कोशिश की, कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान के अवाम इतने सादा नहीं है, वो समझेंगे कि आप चूहों की तरह हुकूमत करना चाहेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम जो है अब चूहों की हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी ने पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं हुई, इतनी बेबरकती नहीं हुई। आज जाकर पता करें कि एक आम आदमी का क्या हाल है। बिजली के बिल ने, गैस के बिल ने, रोजमर्रा खाने पीने की अशिया कहाँ पहुंची हुई, हर चीज उसकी दस्तरस से बाहर। हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज है और वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता। कल की शिकस्त के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता, सिर्फ एक रास्ता है उनके लिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं और स्टेप डाउन करें। ही मस्ट स्टेप डाउन, ही हैज टू रिजाइन एंड दैट इज द ऑनरेबल वे। और उसके अलावा कोई हीला बहाना जो है, मैं समझता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि पीडीएम के कैंडिडेट थे, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है उसने इस बात पर मुहर सबत कर दी है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसलिए हमारा ये जो है वो डिमांड है पीडीएम की कि वजीर आजम मुस्ताफी हो और पूरी हुकूमत मुस्ताफी होकर जो है वो नए इंतखाबात कराए जाएं। शुक्रिया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सीनियर लीडर्स ने बात की है, बिल्कुल ये हकीकत है। इन पे पूरी कौम का एतमाद नहीं था, लेकिन कल के इलेक्शन के बाद तो इनके अपनी हुकूमत अराकीन ने भी बदएतमादी का सबूत दिया है और अभी कोई इनके पास जवाब नहीं है यहाँ पे हुकूमत करने का। इन्होंने आते ही जिस तरह गैर यकीनी सूरत हाल, जिस तरह अनसर्टेनिटी पैदा की और जमहूरियत पे जमूद तारी करने की कोशिश की, कल के पीडीएम के फैसले से, पीडीएम की कोशिशों से, हमारे वोट से और पूरी अवाम की, पूरी कौम की दुआओं से हम सुरखरू है और हमारा बयानिया जो है वो ताकतवर हो गया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पूरी मईशत को तबाह करके रख दिया था। पूरे यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम वो इदारे कि जिसकी तरफ हमारी निगाहें थी, उनको गैर जरूरी रेफरेंसेस में जकड़े रखा, उनको मसरूफ रखा और उसका आपने देखा कि क्या नतीजा निकला। हमारा जो पीडीएम का नारा था वो आज आप सबके सामने है। पूरी आवाम, पूरी कौम खुशियां मना रही है और हमारा भी यही आगे यही लाए अमल है कि अब ये हुकूमत जो है अब इस काम को खत्म करें, वाइंड अप करें। ये बदएतमादी की फिजा जो है इसको अब अपनी ये सीट्स को छोड़ दें और कानूनी और आईनी रास्ता भी यही है कि अब इस पे मजीद जो है ये ना यहाँ पे मुस्तहकम रहे और इस अवाम की जान छोड़े और इस कौमी असम्बली जो कि एक आईनी इदारा है और जिसका एक वकार है उसको मजरू किया जा रहा है। इस तरह के अपने ही
फैसले यहाँ पे ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो इसको छोड़े कि ये जो है एक अवाम की रिफा के लिए जो हम सब तमाम पार्टियां यहाँ पे क्रॉस द पार्टी यहाँ पे हमारा एक ही मौक़िफ़ है, उसकी तरफ आए और इसकी आईन और कानून की बालादस्ती के लिए इस असेंबली को जो है स्मूथली उन लोगों के हवाले करे जो कि सही तरीके से जमहूरियत को समझते हैं, जमहूरियत की रूह को समझते हैं, ताकि आने वाले जो मसाइल हैं कौम के वो हल किए जा सकें और अवाम जो है कोई खुशी की राह देख ले, बजाय ये कि जो आज के ये हालात इनके सामने है। तो ये अदम एतमाद इन पे हो चुका है, अब कोई जवाब पैदा नहीं है, मजीद वक्त जाया न करें और ये वापस लौट मैं सिर्फ एक दो जुमले बोलूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पीडीएम के कायदीन ने तकरीबन तमाम बातें तफसील से कर दी, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अवाम ने तो पहले ही अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन जिन लोगों के सहारे, जिन बैसाखियों के सहारे वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन बैसाखियों की मदद के बावजूद, उनके सेलेक्टर्स की हिमायत के बावजूद, उनकी सेलेक्टेड असम्बली ने कल उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अब तो कोई जवाब बाकी रहे। अपोजिशन रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहसिन दावड़ गुफ्तगू कर रहे थे। इनसे पहले शाहिद खान अब्बासी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आज कौमी असम्बली को अचानक स्पीकर ने के जो इजलास था उसको खत्म कर दिया, चोरों की तरह भाग गए। कल की शिकस्त से हुकूमत बौखला गई है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने यह भी कहा कि कल पूरे पाकिस्तान ने देख लिया हुकूमत को शिकस्त फाश हुई। इमरान खान नियाजी इस हाउस का एतमाद खो चुके हैं। न असेंबली की रवायत आती है, न वोट डालना आता है। जो आदमी खुद अपने उम्मीदवार को वोट ना डाल सका, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? तो मेरी इनसे गुजारिश है कि मैदान हाजिर है, मुकाबला करना है, आ जाओ, तशरीफ लाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब होगा मुकाबला मैदान में, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मेरा आप दोनों से सवाल है कि हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान में एम्पायर का और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, जिसके बारे में आप लोग भी वक्तन कहते रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून की भी क़यादत खामोश है। पीपल्स पार्टी वाले पहले ही माशाल्लाह इतनी ज्यादा एम्पायर के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात नहीं करते थे। तो आप दोनों साबिक मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म क्या देखते हैं कि क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया, और अगर प्ले किया है कहीं आपकी तरफ तो नहीं एस्टेब्लिशमेंट आ गई? देखिए, बात एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बात पाकिस्तान के अवाम की है। पाकिस्तान के अवाम बोल चुके हैं, और वो बोले हैं पीटीआई के अपने मेंबरान की आवाज में। जो हम कह रहे थे, आज पीटीआई के मेंबरान भी वो कह रहे हैं। और जो कल वोट पड़ा, इससे बहुत ज्यादा मेंबरान मौजूद थे जो नहीं वोट देना चाहते थे। बहरहाल जो परसों रात को हुआ, उसको भी तारीख का हिस्सा ही रहने दें। उसके बावजूद ये फतह हासिल किया अपोजिशन ने, और ये फतह पाकिस्तान के अवाम की है, ये फतह जमहूरियत की है। पाकिस्तान के अवाम ने 2018 के इलेक्शन का जवाब कल दे दिया है। अब एक रास्ता है, उसको कहते हैं इलेक्शन। भाई साहब, इमरान खान अपने जो पार्टी के वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ भी वो एक्शन कोई लेंगे कि नहीं? देखो, ये उनका काम है, एक्शन ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग, पूरा पाकिस्तान तंग है, पीटीआई के अपने मेंबरान तंग हैं, वो इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते, इस वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते। इसका जितनी जल्दी एतराफ कर लें, वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। मैं एक सेकंड में इनकी बात का जवाब, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखें, आप एतमाद की बात करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम का एतमाद सामने आ गया। कौमी असेंबली में कल आपने जो देखा, उसकी नजीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अगर हुकूमत खुद ये कहती है कि हम एतमाद का वोट लेना चाहते हैं, तो वो क्या चीज साबित करता है? उनको भी पता है कि हम एतमाद जो है हमारा खत्म हो चुका है, लूज कर बैठे हैं। और अब अगर सदर मुमलकत के पास वो जाते हैं, तो सदर मुमलकत उस वक्त ये कह सकता है जब उसको यकीन हो जाए कि ये वजीर आजम जो है वो कौमी असेंबली के मेजोरिटी मेंबरान का जो है एतमाद खत्म कर बैठा है, उसको हासिल नहीं है, खो चुका है।
उस सूरत में आप सुने, उस सूरत में सदर मुमलकत कहेगा कि आप एतमाद का वोट लें, और अगर सदर मुमलकत ये बात कहते हैं कि ये वजीर आजम जो है वो कौमी असेंबली का एतमाद खो बैठा है, तो वो हमारी बात की तस्दीक करते हैं, वो पीडीएम की बात की तस्दीक करेंगे कि हम भी यही कहते हैं कि वो एतमाद खो बैठे हैं, और जब खो बैठे हैं एतमाद तो उसका रास्ता फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का रास्ता। अगर कौमी हुकूमत बनने जाती है तो उसमें पीडीएम और जो दीगर कौमी हुकूमत पहले तो इलेक्शन की सिर्फ एक हल है, वो इलेक्शन का हल है। कौमी हुकूमतें मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। ये कौमी हुकूमत ही बनाई गई थी, ये हाइब्रिड मॉडल था, ये नाकाम हो गया। भाई साहब, पीडीएम एक तहरीक थी कि एहतजाजी इंतखाबी इत्तेहाद बनता जा रहा है। आपने अब जमनी इलेक्शन जीते, मुश्तरका तौर पर सेनेट का इंतखाब जीता, मुस्तकबिल में हम इसे इंतखाबी इत्तेहाद देखें, पीडीएम जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो पाकिस्तान के अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करता है। जो भी वो करेगा वो पाकिस्तान के अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जमानी होगी, और हम करते रहें। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन तो जीत लिया है, अब पीडीएम का अगला लाहे अमल क्या होगा? अभी चंद दिनों के बाद जो है वो पीडीएम की सरबराही इजलास हो रहा है, उसमें ये फैसले होंगे कि अगला कदम क्या होगा। लॉन्ग मार्च वो तो फैसला 26 को लॉन्ग मार्च, 26 तारीख को लॉन्ग मार्च तो ऑन है, पर मेरा ख्याल है ये लॉन्ग मार्च से पहले ही फाइल हो जाएगा। आखिरी सवाल, इलेक्शन आप लोगों ने भी जीत लिया, इतलाकी तौर पे आपका बयानिया भी जीत लिया, लेकिन सवाल ये है कि एक नैरेटिव डेवलप किया गया है इदारों के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान, जिसमें करप्शन के केसेस वगैरह होते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज को जोड़ा जा रहा है। ऐसे इस तरफ आप लोग जा रहे हैं कि तमाम इदारों के दरमियान बैठ के एक नेशनल डायलॉग या मेरे भाई डायलॉग इलेक्शन के बाद होंगे। आज करप्शन की बात करनी है, ये सारे कैमरे लगाए हम मौजूद हैं, हम पे इल्जाम लगाएं, हमारी ट्रायल करें, क्यों घबराते हैं? और जो इनकी करप्शन है वो भी मैंने बयान कर दी है। चीनी, आटा, गंदम, घी, दवाइयाँ, पेट्रोल, एलएनजी, कौन सा बिजली, गैस, कौन सी चोरी है, ब्रॉडशीट, ये कौन सी ये बिलियन पे सुनामी, इनके तो हर काम में करप्शन है। और ये इतने करप्ट लोग हैं जो वोट भी नहीं डाल सके, अपने वोट बेचे। अच्छा सर, कल नैब ने साहबदार के खिलाफ भी जो इंक्वायरी चली थी उसको बंद करने का हुक्म दे दिया, इस पे क्या कहेंगे? किसने? नैब ने। नैब को बंद होना चाहिए, इंक्वायरी नैब ने क्या बंद करनी है? एक केस चला है नैब से 2.5 साल में। ये तो सियासत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने बंद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी है। ना बंद करें, हम तो कहते केस चलाएं ना जरा। जो केस आपने रेफरेंस दायर किए वो केस आपसे चलते नहीं है। इस नैब चेयरमैन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये इस कुर्सी पे नहीं रहेगा, इसको ब्रॉडशीट का जवाब देना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा कि हुकूमती करप्शन पे से आंखें। मैदान हाजिर है, मुकाबला करना है, आ जाओ, फैसला पाकिस्तानी अवाम करेंगे।